Hello everyone. So as you all know that in previous videos we have covered the concept of secondary hemostasis and its related disorders, and now let's start with some other disorders related to the concept of hemostasis. And I remember that I started with one of the disorders, that was heparin induced thrombocytopenia. Let's have a quick revision, very short revision. And this is as we have already studied that in this disorder it's basically thrombocytopenia. As the name tells, it's you know platelets, overall platelet count decreases due to heparin therapy. And अब प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो क्लॉटिंग भी कम होनी चाहिए, पर क्लॉटिंग बढ़ जाती है. एंड द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस थिंग इज़ हेपरिन इज़ अ एंटीकोगुलेंट. ये एंटीकोगुलेंट है, तो इसका मेजर काम क्या है? कोगुलेशन को रोकना, कोगुलेशन कैस्केड को रोकना, मतलब क्लॉटिंग को रोकना. पर कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है. और जब ऐसा होता है ना, तो फिर पता क्या होता है कि प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, एंड दिस ऑल अकर्स बिकॉज ऑफ इम्यून रिएक्शन. द मेन थिंग टू रिमेंबर दैट इट ऑल अकर्स बिकॉज ऑफ इम्यून रिएक्शन. एंड जब प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है ना, सो व्हाट हैपन्स इज बेसिकली कि यही छोटे छोटे प्लेटलेट के जो फ्रेगमेंट्स टूटे होते हैं ना, दे एबनॉर्मली फॉर्म्स clot, and there is abnormal clot formation, and we know that when there is abnormal clot formation, it's called thrombosis. So in short, clotting increases. This is abnormal clotting, and the major complication of HIT is thrombosis. Okay, so this was the whole concept which we have already studied, and now let's move towards some other disorders. इसमें एक चीज़ important मैंने बताई थी, और वो ये थी कि अगर किसी पेशेंट को अब वो ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे था, और उसको एंटीकोगुलेंट क्यों ही दिए जा रहे थे? क्योंकि उसको ज़रूरत थी भाई. फॉर एग्जांपल उसको वहीं पे देयर माइट बी अ प्रॉब्लम ऑफ सम काइंड ऑफ थ्रोम्बाई, है ना. उसको मतलब या तो कोलेस्ट्रॉल उसका बंदे का ज़्यादा होगा, या वहाँ पे कहीं पे व्हाट डू वी कॉल इट, प्लैक डिपोजिशन होएगी, कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लड वेसल में, तभी वो एंटीकोगुलेंट ले रहा है ना. सो अब तुम हेपरिन नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ द when we are giving heparin, the patient is facing the issues of extreme thrombocytopenia and increased in clotting, formation of thrombosis, which is actually increasing other major complications. So now we cannot give heparin to that patient. So what other drugs should we do? We can give him, we can prescribe him. And what other drugs we should not prescribe him? So as I already explained in previous video, I want to just revise this concept. It's a very important high yield clinical concept, that in this condition heparin तो अब तुम उसको दोबारा दे नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह से HIT हो रहा है. HIT इज हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. इसके अलावा तुम वारफेरिन भी नहीं दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो. इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये रहता है ना, कि जो हमारे पास ये वारफेरिन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्लॉक विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर. इट ब्लॉक्स इट इनहिबिट्स इट, या ठीक है. तो अब ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से थे, हमने पढ़े हुए हैं. इट वाज फैक्टर we have already studied about it. It was factor number 7, it was factor number 2, it was factor number 9, and it was factor number 10. 2 along with protein C and protein S. So we should know that the factor number 2, 7, 9 and 10, they all are responsible for coagulation cascade.
They are very important factors involved in the process of coagulation cascade. Whereas whenever we talk about protein C and protein S, they are responsible, uh, like they are known as clot breakers. Okay, they dissolve the clot. सो बेसिकली जो विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, दे आर नॉट नेसेसरली contributing in increasing the clotting. It's not necessary that all of these factors are actually contributing for the coagulation cascade only, but what happens is that there are mix of factors. Some of the factors are responsible for the coagulation cascade, that is, they promotes the clotting, they promote the clot formation, but there are two proteins which are protein C and protein S. They are the clot breakers. I hope you understand, they are the clot breakers. So and out of these, the level of protein C, specifically protein C, falls the first because it has the shortest half life. वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो फैक्टर नंबर 7 की भी बहुत कम होती है हाफ लाइफ, वो भी सबसे पहले इट्स लेवल फॉल्स. बट ओवर हेयर व्हेन वी टॉक अबाउट दीज all collectively, then protein C has the shortest half life and it falls faster than the clotting factors. And you know what, it is a natural anticoagulant. As I told, it is a clot breaker. It comes in the category of clot breaker. So protein C is a natural anticoagulant which prevents the excessive clotting. सो वॉट हैपन्स इज़ कि अगर हेपरिन तुम रोक के वारफेरिन देनी शुरू कर दोगे, तो वॉट विल हैपन इनिशियली आफ्टर गिविंग द वारफेरिन, प्रोटीन C लेवल ड्रॉप्स वेरी क्विकली. And you know why it will drop very quickly? Because it has the shortest half life. So the anticoagulant protection disappears. I hope you understand the concept that it is responsible for anticoagulation. So if its level drops, then the anticoagulation protection will disappear and clotting factors are still present. ये तो नॉर्मल ही है, ये अभी नहीं गिरने शुरू हुए हैं, ठीक है. So these are normally present, but this thing is, somewhere there is decrease in this thing. So now what will happen? क्लॉट जो तोड़ने वाले थे वो तोड़ नहीं पा रहे, लेकिन क्लॉट बन रहा है. समझ रहे हो? ए और बी इक्वल अमाउंट में था, ये क्लॉट बना रहा था, ये क्लॉट घटा रहा था. किसी वजह से ये चीज़ फ़िलहाल के लिए कम हो गई. तो अब ये तो नॉर्मल ही है ना, तो एक पॉइंट के लिए क्लॉट को तोड़ने वाली चीज़ कम होगी, तो बनाने वाली तो नॉर्मल है, तो क्लॉट तो बनेगा ही बनेगा. अब उसको तोड़ने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब एक टेम्पररी हाइपर कोगुलेबल स्टेट बन जाती है. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि जो क्लॉट बनाने वाला था वो नॉर्मल प्रेजेंट है अभी, लेकिन क्लॉट घटाने वाला, कम करने वाला डिक्रीज़ हो गया. तो इसके डिक्रीज़ होने से क्या होगा? क्लॉट जो बन रहे थे वो तो बनते रहेंगे ना, तो क्लॉट्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्लॉटिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो कोगुलेशन ज़्यादा होगी. कैन यू अंडरस्टैंड? कोगुलेशन ज़्यादा होगी, एंड जब कोगुलेशन ज़्यादा होगी तो उस स्टेट को क्या कह दिया? हाइपर कोएगुलेबल स्टेट. एंड ये स्टेट एक टेम्पररी स्टेट होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, क्योंकि क्लॉटिंग, ये वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स ने भी कम होना है, क्योंकि हमने वारफेरिन ब्लॉक करता है इनको. तो इसको सबसे पहले इसका लेवल कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ. बट इट डजेंट मीन दैट दीज लेवल्स ऑफ दीज फैक्टर्स वोंट फॉल, दे विल फॉल ग्रेजुअली. बट द फर्स्ट थिंग विच विल फॉल इज दिस थिंग, because it has shortest half life and because it belongs to the category of anticoagulation factor. So it will overall affect the concept of hypercoagulability basically. So what will happen is in this, okay, so we were on this particular concept that कोगुलेशन इसकी वजह से एक टेम्प्रेरी हाइपर कोगुलेबल स्टेट बन जाएगी, जिसकी वजह से पता क्या होता है, एक और बीमारी हो जाती है विच इज़ कॉल्ड वारफेरिन इंड्यूस्ड स्किन नेक्रोसिस, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस. भाई बहुत ख़तरनाक सी चीज़ होती है, बहुत ही इट्स पेनफुल एंड very worse condition in which hypercoagulability it becomes very severe.
and due to which there are severe clots which are formed, and it may cause this condition called warfarin induced skin necrosis. So instead हेपेरिन नहीं दे सकते क्योंकि HIT हो जाएगा. वारफेरिन दोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि ये हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक तो उसके प्लेटलेट्स कम है, क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है, पहली क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है, ऊपर से जो एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, वो कम हो जाएगा, और ऊपर से ये वाले फैक्टर्स अभी प्रेजेंट है, और क्लॉटिंग पहले ही ज़्यादा हो रही है, थ्रोम्बोसिस का रिस्क पहले ही है, और तुम ऊपर से ये चीज़ दे दोगे जिसमें पहले सबसे पहले ही एंटीकोगुलेंट्स का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा. सो ओवर हेयर ये कंडीशन राइज हो जाएगी. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी प्रोवाइड द पेशेंट विद, आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो दैट वी provided with thrombin inhibitors. So there are many examples, like it could be so we don't need to remember the name of drugs, like बहुत सारे हैं, but चलो like for concept building or knowledge के लिए we can give this type of drugs like argatroban or bivalirudin. They are thrombin inhibitors. So basically these thrombin inhibitors specifically control the clotting without causing the protein C drop problem. And I hope you understand that by giving this there will be no problem of protein C drop, because of which this condition was arising. So we will prevent this type of conditions. So in like very short, I would like to conclude that warfarin is contraindicated in HIT because it rapidly decreases the protein C. I hope you understand that it rapidly decreases the level of protein C, and it creates a temporary hypercoagulable state which can further it can worsen the thrombosis complication and can cause warfarin induced skin necrosis. Okay. So warfarin is also contraindicated in this case, and instead which drug is preferred is, we have already studied, thrombin inhibitors. They are preferred over here. Okay, so now let's come on the other another disorder, major disorder to be discussed, and it is, just a minute. Okay, so it is DIC. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले ही हाईलाइट कर लो. इट इज़ disseminated intravascular coagulation. Okay, so what happens is, पहले तो नाम से पढ़ते हैं क्या है. disseminated का क्या मतलब होता है? disseminated मतलब जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है. so it's basically we can say having spread throughout the body. तो यार जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है उसे हम कहते हैं disseminated. इंट्रावैस्कुलर मतलब inside the vessel. which vessel? blood vessel यार. okay, coagulation, we know that what is coagulation, it means clotting. so नाम से क्या पता लग रहा है? नाम से हम एक थोड़ा सा we can make a idea, we can have an idea that it means somewhere that in the whole body, in the blood vessels present inside the body, what happens is there is clotting, abnormal clotting. so is this overall theory of the disease is right? yeah, it's right. it's a pathological activation of coagulation cascade. so what happens is एक होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन, वी शुड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. एक होता है फिजियोलॉजिकली कोई चीज़ हो रही है, और एक होती है पैथोलॉजिकली. सो कोई भी चीज़ फिजियोलॉजिकली हो रही है मतलब वो चीज़ नॉर्मल है. अब देखो, अगर हमारे कोई चोट लग गई है, ओके, एट द साइट ऑफ इंजरी, नाउ देयर इज़ ब्लीडिंग,
bleeding is occurring. So we need to stop that bleeding. For that process, to basically prevent the blood loss and to stop the bleeding, body performs a very natural process of coagulation. Okay, so as to prevent the bleeding, clot formation occurs. So this is something physiologically जो होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो there will be huge amount of blood loss from the area wherever the injury has occurred. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पैथोलॉजिकल कंडीशन इज जब ज़रूरत नहीं है पर फिर भी कोगुलेशन हो ही जा रही है, वो दिक्कत वाली बात है. सो फिजियोलॉजिकली इज द कंडीशन विच अकर्स वेरी नॉर्मली, एंड पैथोलॉजिकली इज जब कुछ गड़बड़ है, व्हेन समथिंग इज एबनॉर्मल. ओके, सो यहाँ पे मेजरली हमारे पास यही आता है. एंड आई वॉन्ट टू मैंशन ओवर हियर दैट दिस कंडीशन इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन, you know, because it happens everywhere inside the body. First of all, disseminated, spread throughout the body, पूरे बॉडी में हो रहा है. क्लॉट्स बने जा रहे हैं, ठीक है, एवरीवेयर. कहाँ पे? ब्लड वेसल्स के अंदर. देयर इज ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स. एंड यू नो कि पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है. तो ये हमारा हार्ट है फॉर एग्जाम्पल. बहुत बुरा हार्ट बनाया. ओके, कोई बात नहीं, एक हमने रफ इमेज ही बनानी है. सो दिस इज़ द हार्ट, और यहाँ से ही मेजरली हमारी सारी जो भी वेसल्स हैं, है ना, जो भी हैं, कनेक्टेड हैं. आई वॉन्ट टू टेल दैट अगर यही वेसल में यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है, हर जगह अगर ब्लॉकेज हो रही है, बिकॉज वी स्टडीड दैट इन दिस कंडीशन वी हैव अ ब्लॉकेज थ्रू आउट द बॉडी. सो अगर हर जगह ब्लॉकेज रहेगा, व्हाट विल हैपन? इट कैन रिस्क some certain conditions related, some certain cardiovascular conditions, complications specifically to say. So DIC is a very serious condition, because सबसे पहले the first reason is because coagulation occurs everywhere in the body, everywhere in the blood vessel, and coagulation cascade becomes abnormally activated, overactivated basically पूरी body में. So this widespread clot formation, basically it can lead to some other major complications as well. पर इसके अलावा there is widespread clot formation, ठीक है. तो clot formation ज़्यादा हो रहा है. So clots कैसे बनते हैं? Platelets का काम आएगा. So platelets are used up here. Platelets are used up as well as clotting factors are also used up. ठीक है, समझ रहे हो, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, और ये हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से अलग है. आई वांट टू लाइक ओके, HIT में क्या होता है? हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रहा था, सिंपल लिखती हूँ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सॉरी. ओके, प्लेटलेट्स कम हो रहे थे बट क्लॉटिंग बढ़ रही थी, ठीक है. क्लॉटिंग क्यों बढ़ रही थी? हमने पढ़ा है, क्योंकि हेपरिन है तो एंटी कोगुलेंट, ठीक है. इसका काम क्या था? क्लॉटिंग को कम करना. लेकिन क्लॉटिंग कम करते क्लॉटिंग अगर कम होएगी तो कैसे कम होएगी? प्लेटलेट्स को यूज़ करेगा, कोगुलेशन फैक्टर्स को यूज़ करेगा. तो जब इन सब चीज़ों को यूज़ करेगा, इनका लेवल तो कम हो जाएगा, पर प्लेटलेट्स इतने कम हो जाते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो टूटते हैं ना, वो आपस में जुड़ के अलग अलग तरह के एबनॉर्मल क्लॉट्स बना लेते हैं. भाई, जिसको वो रोकने गया था वही चीज़ बढ़ने लग गई, तो एबनॉर्मल क्लॉटिंग होती है. एंड इन कंडीशन ऑफ DIC व्हाट हैपन्स इज बेसिकली disseminated intravascular coagulation. In this condition clotting बहुत बढ़ जाती है. Everywhere in the body clot formation occurs, and because clotting increases, it means there is used up platelets as well as coagulation factors, so they decreases. There is overall decrease in the platelet number, platelet count and coagulation factors. यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या है कि this lead to both thrombosis plus bleeding. I hope you understand कि thrombosis, क्योंकि abnormal clotting यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है, हर जगह क्लॉट्स बन रहे हैं, तो क्या वो अच्छी चीज़ है? नहीं, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा. अब अगर यहाँ पे जो कोगुलेशन फैक्टर्स और प्लेटलेट्स
फिजियोलॉजिकली रिक्वायर्ड होते हैं, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे ब्लीडिंग रोकने के लिए। पर अब ये सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन में। तो क्या जहाँ पे ज़रूरत है क्या वहाँ पे वो होंगे? नहीं, एबनॉर्मली ब्लीडिंग भी बढ़ जाएगी। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को लगता है समझ आ गया कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ब्लड वेसल, इफ़ इट इज़ occluded with the thrombus, always remember we have some one of the high yield characterization feature or characteristic feature of thrombus. For example, if this is a thrombus, then its characteristic feature is that it will be attached with the blood vessel. And whenever we talk कि ये जो थ्रोम्बस है अगर ये डिसलॉज हो गया, इफ़ इट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन एंड ये हवा में मतलब ब्लड वेसल में कहीं पे फ्लोट करके जा रहा है, then this is not called thrombus, then it is called emboli. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। थ्रोम्बस और एम्बोलाई में फ़र्क होता है। थ्रोम्बस इज ऑलवेज अटैच्ड विद द ब्लड वेसल, बट व्हेन दिस थ्रोम्बस डिसलॉज होता वही चीज़ है, पर जब ये ब्लड वेसल से अटैच्ड नहीं रहता और ये फ्लोट करने लग जाता है इस ब्लड में, देन इट्स कॉल्ड एम्बोलाई। ओके, आई होप यू गेट दिस कंसेप्ट। सो व्हाट हैपन्स इज थ्रोम्बस की वजह से अभी ब्लड वेसल में क्या आ गई? ब्लॉकेज आ गई। देयर इज ब्लॉकेज। अब इस ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा? देयर वुड बी रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? आरबीसीज जो पहले नॉर्मली जा रहे थे अब वो नॉर्मली नहीं जा पाएंगे, अब यहाँ पे जाएंगे, बट उनका आरबीसीज का जो पाथवे है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो आरबीसीज में एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो अगर आरबीसीज अच्छे से नहीं पहुंच पा रहे तो क्या हीमोग्लोबिन पहुंच पाएगा? नहीं। तो क्या ऑक्सीजन पहुंच पाएगा? नहीं। तो क्या होगा? इस्कीमिया। एंड यू नो व्हाट इज इस्कीमिया? इस्कीमिया इज रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई और रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हाइपोक्सिया भी कह सकते हैं, हाइपोक्सिया भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा। सो स्पेसिफिकली वी कैन से इस्कीमिया हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और इसकी वजह से अगर ये कंडीशन ना ठीक करी जाए, इट कैन लीड टू इन्फेक्शन। इट कुड बी एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। स्पेसिफिकली ज़्यादातर ये मैंने यहाँ पे जो भी बताया ये चीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, इट कुड बी मायोकार्डियल इन्फेक्शन एज वेल। सो DIC कैन इवन कॉज दिस थिंग, या इट कैन किसी भी तरह का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ना ये। सो वी शुड treat this situation as soon as possible whenever it is diagnosed. ओके, सो बेसिकली फैक्टर्स भी मैंने बता दिया, ये फैक्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं और प्लेटलेट्स भी यूज़ हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स भी यूज़ हो रहे हैं, फैक्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं, दोनों का ही नंबर कम हो जाता है और इसकी वजह से ब्लीडिंग होने लग जाती है और थ्रोम्बोसिस हो जाता है। ठीक है, स्पेशली फ्रॉम विच साइड्स इट अकर्स? फ्रॉम द IV साइड्स। फ्रॉम IV साइट्स स्पेसिफिकली ब्लीडिंग होने लग जाती है, या फिर जो म्यूकोजल ओपनिंग्स होती हैं, वेट या म्यूकोजल ऑरिफाइसेस इट्स मेंशन्ड, यानी कि ओपनिंग्स, जैसे कि माउथ से ब्लीडिंग होने लग जाएगी, मुंह से खून निकलेगा, जैसे हेमोप्टाइसिस। यू विल कफ द ब्लड। नोज ब्लीडिंग हो सकती है, which is called epistaxis. There could be GI bleeding. It could be hematuria, genital area से bleeding. Yeah, okay. Genital bleeding we can say, because orifices से हो रही है ना, opening से हो रही है. It could be from the mouth, it could be from the nose, it could be from the genital area. So it's a severe complication. Okay, so okay, these were the major things involved in this, that there would be severe bleeding and there would be severe what do we call it, clotting. Okay, okay, जो ये DIC होता है
ये कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि खुद से ही हो जाए, प्राइमरी नहीं होता, ये कोई और कंडीशन की वजह से होता है. यूजुअली it occurs because of some another disease, another underlying another underlying disorder, and there are certain categories of those which we need to study. So they are specifically divided as 5 categories, जिनकी वजह से ये तकलीफ़ रह सकती है. कौन सी तकलीफ़? The problem of abnormal clot formation and abnormal bleeding as well. तो सबसे पहले गायनी related problem, obstetric complications, and you should know why. बिकॉज obstetric complications, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, इफ़ देयर इज़ सम टाइप ऑफ placental abruption, or if there is amniotic fluid embolism. तो पता क्या होता है, देखो प्लेसेंटा फट गया, एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर जाएगा, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, बीच में कोई एम्बोलाई आ गया तो उसकी वजह से कोई दिक्कत होगी. तो पता क्या होता है कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, अब इसकी वजह ऐसी कंडीशन की वजह से डीआईसी कैसे हो सकता है? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसके अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3 जो हमारा है वो प्रेजेंट होता है नेचुरली. तो अगर ये चीज़ फट जाएगी, इस चीज़ में रप्चर होगा, या फिर ये रप्चर होगा जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज होगा, तो उसकी वजह से कोagulation एक्टिवेट हो जाएगा ना. I hope you understand what I'm trying to say, that this thing contains this tissue thromboplastin, and if it's leaked somewhere, like there is some type of complication during pregnancy, or while labor, during delivery, if there is some problem due to which such conditions arise, then it will lead to it will increase the coagulation. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, coagulation एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर एबनॉर्मली एक्टिवेट हो गया, इट्स DIC. स्पेसिफिकली इट इज़ ओवर एक्टिवेशन ऑफ coagulation. Okay, so the second the condition which can lead to DIC is sepsis, and it is most common and most important as well. ठीक है, और वो भी स्पेसिफिकली 2 तरह के बैक्टीरिया, जैसे कि एस्चेरिशिया कोलाई एंड नाइसीरिया मेनिंजाइटिस. ओके, सो हम बात कर रहे थे सेप्सिस की, कि सेप्सिस स्पेसिफिकली एस्चेरिशिया कोलाई और नाइसीरिया मेनिंजाइटिस जो है, ये 2 ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस स्पेसिफिकली कहा जाए which can cause DIC, and we know that sepsis specifically is blood infection. Okay, so इससे कॉम्प्लिकेशन रहती है DIC की, और वजह ये है कि जो ये बैक्टीरियाज हैं, इन बैक्टीरिया से रिलीज़ होते हैं एंडोटॉक्सिन्स. ठीक है, और जो बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स हैं, व्हेन दे कंबाइन विद द साइटोकाइंस, द इम्यून सिस्टम, ओके, इट बेसिकली इंड्यूसेस द एंडोथेलियल वॉल. इट इंड्यूसेस द एंडोथेलियल वॉल, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स स्पेसिफिक टू से, तो हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, what are they responsible for? They're responsible for secreting many kind of vasodilators, natural anticoagulants, for example nitric oxide, PgI2. They also secrete heparin like molecules like heparin sulfate. Okay, and there are many more. So basically अगर इस पे वो होगा, इसके अलावा एक और चीज़ ये सिक्रिएट करते हैं, वो है टिश्यू फैक्टर. टिश्यू फैक्टर क्या करता है? ये एंटी कोगुलेशन में हेल्प करता है. सॉरी कोगुलेशन में, नॉट एंटी.
कोगुलेशन में। कैसे? बिकॉज टिश्यू फैक्टर इज़ आर फैक्टर नंबर 3। ठीक है, तो और भी कई चीज़ें होती हैं जो एक्टिवेट हो जाती है, पर स्पेसिफिकली एंडोथीलियल सेल्स को इंड्यूस करने पे हमारा टिश्यू फैक्टर विच इज़ फैक्टर नंबर 3 इट गेट्स एक्टिवेटेड एंड इसे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। एंड ये आगे फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करता है और ये आगे जाके अपना हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन कैस्केड हमारा एक्टिवेट हो जाता है। सो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि DIC क्यों हो सकता है ना, किस वजह से हो सकता है। वो सेकेंडरी कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। सेकेंडरी जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ गई ऑब्सगाइनी की, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेसिफिकली एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड अगर होती है। फॉर एग्जांपल एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि उसकी वजह से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है हमारा ये रिलीज़ हो जाता है। जहाँ पे भी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ कोगुलेशन एक्टिवेट होगा। सेप्सिस, भाई किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, जब जिसकी वजह से ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है ना, तो एस्चेरिशिया कोलाई और ये नाइसीरिया बैक्टीरिया से जो खासकर होती है, इनकी वजह से क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस की वजह से इम्यून रिएक्शन हो जाता है एंड कोगुलेशन बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये इकट्ठे मिल के इम्यून सिस्टम को इस तरीके से एक्टिवेट करती है कि इम्यून सिस्टम हमारा इनको एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा अगर एडिनोकार्सिनोमा, कैंसर, कार्सिनोमा मतलब कैंसर एंड एडिनो मतलब जो ग्लैंडुलर हमारे सेल्स होते हैं उसमें जब दिक्कत रहे, मतलब प्रिसाइजली टू से लाइक म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल, जो हमारे म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ग्लैंडुलर ऑर्गन्स के अंदर, फॉर एग्जांपल कैंसर ऑफ लंग्स, ऑफ प्रोस्टेट, ओके, ऑफ पेनक्रियाज, देयर मैनी मोर ग्लैंड्स, ब्रेस्ट, या एडिनोकार्सिनोमा में आ जाएगा। सो इसमें क्या होता है ना कि अब क्या बोला मैंने, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। एडिनोकार्सिनोमा होता क्या है, वो ऑर्गन्स जहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो होते हैं ना उसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, वहाँ पे कैंसर हो जाता है। ओवर प्रोडक्शन से ट्यूमर बनता है, ट्यूमर से कैंसर बनता है। ठीक है, डिस्प्लेजिया एंड फर्दर कॉजिंग कैंसर। सो स्पेसिफिकली यहाँ पे ना वी हैव म्यूसिन सिक्रीट होता है। म्यूसिन इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग कोएगुलेशन ओवर हेयर, और ओवर एक्टिव हो जाएगी जब कोएगुलेशन तो उसे क्या कहेंगे, DIC। एडिनोकार्सिनोमा के अलावा हमारे पास है ल्यूकेमिया, APL स्पेसिफिकली, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट ब्लड कैंसर। अच्छा, ये भी वही चीज़ है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं ना, वी हैव प्राइमरी ग्रेन्यूल्स, हेयर वी हैव प्राइमरी ग्रेन्यूल्स। ये जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स रैटल स्नेक बाइट। जो रैटल स्नेक होते हैं इनके जो भी ये जहर सिक्रीट करते हैं, जो विनोम होता है वो डायरेक्टली कोगुलेशन को बढ़ा देता है। तो ये मेजर कॉजेज़ है DIC के। इसके मेरे पास बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे, यस ओवर हेयर, रिवीजन कर ले। हाँ, सो ओके, सो वी नो व्हाट इज़ DIC। इट्स बेसिकली क्लॉटिंग एवरीवेयर इन द बॉडी एंड साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है। अब ये क्यों होती है दोनों की दोनों चीज़ें क्योंकि कोगुलेशन सिस्टम हमारा ओवर एक्टिवेट हो जाता है। कोगुलेशन सिस्टम ओवर एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, हर जगह छोटे छोटे क्लॉट्स बनने लग जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोथ्रोम्बाई जो है वो बनने लग जाते हैं। और ये जो माइक्रोथ्रोम्बाई होते हैं, अब ये अगर हर जगह क्लॉट बनेगा तो क्या ब्लड फ्लो अच्छा होगा, नहीं होगा। इसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है, और अगर वो ट्रीट ना हो तो इन्फेक्शन। ठीक है, सो बेसिकली DIC इज क्लॉटिंग एवरीवेयर इन द बॉडी, अलॉन्ग विद द क्लॉटिंग ब्लीडिंग ऑल्सो अकर्स एट द सेम टाइम।
बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई, और माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन की वजह से ना यहाँ पे हमें एक और क्लिनिकल फीचर देखते हैं, और वो पता है क्या है? जस्ट रिमेंबर, जस्ट उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, MAHA से, विच वॉज माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। उसमें हमने पढ़ा था जहाँ पे भी माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन होती है ना, तो उस जगह पे बेसिकली RBCs जो होते हैं ना, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिस्टोसाइट्स। सो इसकी वजह से ना DIC में हम जब भी लैब फाइंडिंग्स देखेंगे तो हम वहाँ पे सिस्टोसाइट फॉर्मेशन देख सकते हैं, या सिंपली कहो कि MAHA हो सकता है उस बंदे को, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। कौन से वाला? माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। ओके, ये जो क्लॉट्स होते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी यूज़ कर लेते हैं और प्लेटलेट्स को भी यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कम हो जाएंगे। अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होंगे तो क्या PT और PTT क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारे टेस्ट हैं कि जब भी क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होते हैं ये दीज you know that these test increases and thrombocytopenia, प्लेटलेट्स कम रहेंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स कम रहेंगे। उसके अलावा क्या होता है? अब देखो, प्लेटलेट्स नहीं होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी। जितने भी प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स है दे विल गेट यूज्ड अप ओवर हेयर। सो मेजरली दो प्रॉब्लम्स हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉटिंग की वजह से एस्कीमिया एंड इन्फेक्शन इज अकरिंग। ओके, और ब्लीडिंग कहाँ हो रही है? आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अंदर ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट्स बन रहे हैं, और ब्लीडिंग क्या अंदर थोड़ी, इंटरनल ब्लीडिंग थोड़ी होती है। यहाँ पे चोट लगे तो खून बाहर को निकलेगा ना, अंदर की तरफ थोड़ी निकलता है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि ब्लीडिंग बाहर की तरफ होती है ऑफकोर्स, एंड दिस इज़ द थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो सिवियर ब्लीडिंग की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एंड इट नेवर अकर्स अलोन। It's always due to secondary reasons like obstetric complications of placental abruption or amniotic fluid embolism, because it contains tissue thromboplastin and it activates our coagulation. Sepsis is very common cause, because specifically Escherichia coli and Neisseria meningitis. What happens is the endotoxins from the bacteria combines with the cytokine, and the immune system is overactivated in the body, and it specifically targets the endothelial cells of the which are lining the blood vessels, and it basically releases the tissue thromboplastin factor, which activates the coagulation. Then we have adenocarcinoma. Adenocarcinoma is a type of cancer which begins in the glandular cells within the organs, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स लाइक कौन से ऑर्गन्स में स्पेसिफिकली कहा जाता है? लंग्स, ब्रेस्ट, कोलोन, येस कोलोन, आई मिस्ड इट, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट। तो ऐसे ऑर्गन्स में वी कैन सी एडिनोकार्सिनोमा वेरी प्रोमिनेंटली, एंड प्रोग्रेसिव कैंसर है ये। ट्यूमर प्रोड्यूसेस म्यूसिन इन दिस थिंग। हमने कहा म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, म्यूसिन सिक्रिएट करते हैं। दिस म्यूसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग क्लॉटिंग ओवर हेयर, एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट APL, the leukemic cells over here, the cancerous cells contains primary granules, and these primary granules activates coagulation. Also important point to note over here that the classic histologic or the microscopic finding in the acute promyelolytic leukemia, it is or rods. ये चलो एक्स्ट्रा है। तो हमें मेन पॉइंट याद रखना है कि भाई क्या चीज़ की वजह से ये कोआगुलेशन एक्टिवेट होती है। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में जब भी एमनियोटिक फ्लूइड की मतलब इसमें मेन क्या है? ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करता है कोएगुलेशन को। अरे भाई, अगर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करता है सो कहाँ से आता है वो? एमनियोटिक फ्लूइड से। सेप्सिस में कौन होता है? यहाँ पे भी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है। कहाँ से आता है? एंडोटॉक्सिन्स ऑफ द बैक्टीरिया, एंड व्हेन इट ओवर एक्टिवेट्स आवर इम्यून सिस्टम। एडिनोकार्सिनोमा में म्यूसिन डायरेक्टली एक्टिवेट्स क्लॉटिंग, म्यूसिन विच इज सिक्रेटेड बाय द cells present in the mucus producing cells in the adenocarcinoma. Acute myelocytic leukemia में प्राइमरी ग्रेन्यूल्स से सिक्रिएट होता है, कोगुलेशन एक्टिवेट होता है और रेटल स्नेक बाइट में जो स्नेक विनोम होते हैं दे डायरेक्टली एक्टिवेट्स द कोगुलेशन फैक्टर्स। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो लैब फाइंडिंग्स मैंने पहले बता दिया, थ्रोम्बोसाइटोप्लेटलेट्स यूज हो रहे हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी यूज अप हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स भी कम होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कम होंगे, बट क्लॉटिंग बढ़ेगी।
देखो यही तो कंसेप्ट है, क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो रहे हैं पर क्लॉटिंग बढ़ रही है क्योंकि एबनॉर्मल क्लॉटिंग हो रही है, माइक्रोथ्रोम्बाई बन रहे हैं और ब्लीडिंग भी बढ़ रही है। तो ब्लीडिंग टाइम क्या होएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, माइक्रोथ्रोम्बाई प्रेजेंस की वजह से MAHA हो सकता है, आरबीसीज गेट डैमेज्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द माइक्रोथ्रोम्बाई, दे वी कैन सी फ्रेगमेंटेड आरबीसीज विच इज सिस्टोसाइट फॉर्मेशन, पीटी एंड पीटीटी विल बी रेज्ड अप, वाई, बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर डाउन। फिब्रिनोजन, देखो फिब्रिनोजन इसमें कम रहता है, इसको तुम कई चीज़ों की तरह से हेल्प याद कर सकते हो, पर मैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से इसको याद रखती हूँ, दैट इट इज़ क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होते हैं। फिब्रिनोजन इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, इट इज़ इनएक्टिवेटेड। फिब्रिनोजन क्या है, इट इज़ इनएक्टिवेटेड फैक्टर वन, और इसी को अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं तो वो फिब्रिन बन जाता है। सो इनएक्टिवेटेड फैक्टर वन है, क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होंगे, यूज अप होंगे तो फिब्रिनोजन कम होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, स्पेशली डी डाइमर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना वो समझते हैं यहाँ पे। सो क्या होता है ना कि ओके देखो यहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रही है, ये इंजरी की साइट है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लॉट बनना शुरू होगा। तो हमारा क्लॉट बनाने का मकसद क्या है, लाइक वाई डू वी वॉन्ट टू फॉर्म द क्लॉट? टू हील द इंजरी साइट। हम क्लॉट इसलिए बनाते हैं ताकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट जो बन रहा है, बाद में वो जो जगह पे रप्चर हुआ है, जो जगह पे ब्लीडिंग हो रही है, वो चीज़ ठीक हो जाए। ठीक है, सो इसीलिए क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तो हमारा मकसद क्लॉट बनाना नहीं है, कोagulation का फाइनल what is the goal of coagulation, or what is the final goal of hemostasis, what is the goal, why do we need hemostasis? Not just to form the clot or to form the weak platelet plug and then stabilize that platelet plug, as we studied in primary and secondary hemostasis respectively. That's not our goal. Our goal is to heal this area. तो इसको क्लॉट जब बनता है ये टूटता भी है, दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ओवर हियर, आई एम एडिंग इट। ये बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में हमने नहीं पढ़ा है कि ये जो क्लॉट बन गया, अब इसको क्या करा जाएगा, तोड़ा जाएगा, ताकि ये जो जगह है ये हील होने लगे। और इसको तोड़ने के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेसिफिक सी चीज़ आती है और उसको कहते हैं प्लाज्मिन। ठीक है, ये जो प्लाज्मिन है ना, दिस प्लाज्मिन बेसिकली क्लीव्स दिस फिब्रिन क्लॉट। ओके, एंड वैसे अगर हम इन जनरल बात करें, देन प्लाज्मिन इज रिस्पॉन्सिबल टू क्लीव फिब्रिन एंड सीरम फिब्रिनोजन। Okay, plasmin is responsible to destroy the coagulation factors and it also blocks platelet aggregation. It's a very important concept. मतलब हम एक कहते हैं ना कि अगर फिब्रिन क्लॉट बनाता है तो क्लॉट को तोड़ता कौन है, प्लाज्मिन तोड़ता है। A very high yield concept and a point to remember, फिब्रिन क्लॉट बनाता है और ये प्लाज्मिन इसको तोड़ता है, कम करता है। ठीक है, सो ये प्रोसेस होता है, प्लाज्मिन इसको तोड़ता है। तो जब भी फिब्रिन को वो तोड़ेगा ना, तो फिब्रिन टूट के कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है जिसको हम कहते हैं फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स। अब मैंने दो चीज़ें बोली कि प्लाज्मिन क्या तोड़ता है, फिब्रिन को भी तोड़ता है और ये फिब्रिनोजन को भी तोड़ता है, सीरम फिब्रिनोजन को, ब्लड में जो फिब्रिनोजन होता है उसको भी तोड़ता है। और जब ये फिब्रिनोजन को तोड़ता है तो फिब्रिनोजन जब टूटेगा तो वो भी कुछ प्रोडक्ट्स निकालेगा जिसे हम कहते हैं फिब्रिनोजन स्प्लिट प्रोडक्ट्स। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझाने जा रही हूँ
फिब्रिनोजन और फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स में एक बहुत ही क्लासिक सा डिफरेंस जो कि पूरी गेम बदल देता है, वो मैं आगे बताऊंगी वो क्या होती है। कि जो फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है ना वो होता है डी डाइमर। और ये डी डाइमर सिर्फ तभी प्रोड्यूस होता है जब फिब्रिन टूटता है। प्लाज्मिन, देखो अब कंसेप्ट क्या है, प्लाज्मिन तोड़ता फिब्रिन को भी है, फिब्रिनोजन को भी है, पर डी डाइमर तभी प्रोड्यूस होगा जब फिब्रिन जो है वो टूटेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, फिब्रिनोजन के स्प्लिटिंग, फिब्रिनोजन को तोड़ने पे कोई भी डी डाइमर प्रोड्यूस नहीं होता। देयर इज नो डी डाइमर। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे आएगा। okay, so this was the one thing which I wanted to tell, and the second thing was specifically कि ये जो process है in which the fibrin is lysed or cleaved by the plasmin, it's called fibrinolysis. It is fibrinolysis. I hope you understand this. और fibrinolysis somewhere is very much similar to DIC, ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि हमारा जब हम DIC की बात करते हैं तो डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन में हमें क्या करना होता है कि जो क्लॉट होता है ना, फिब्रिन का जो क्लॉट होता है, यू नो स्टेबलाइज्ड क्लॉट, उसमें तो फिब्रिन वाला क्लॉट होता है ना, फिब्रिनोजन वाला नहीं होता क्योंकि वो स्टेबलाइज्ड क्लॉट है। तो प्लाज्मिन जब इसको तोड़ता है तो होती है फिब्रिनोलाइसिस, लेकिन ये फिब्रिनोलाइसिस, फिब्रिन टूटता है, राइट, फिब्रिन के टूटने पे डी डाइमर प्रोड्यूस होता है। पर जब हम वैसे फिब्रिनोलाइसिस कहते हैं, फिब्रिनोलाइसिस अ जनरल टर्म in which normal in normal fibrinolysis what happens is thrombus or this clot is removed from the damaged vessel so as to heal that vessel. Okay, so in that case plasmin not only splits or cleaves or lyses this fibrin, but it also lyses fibrinogen. तो डी डाइमर प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि डी डाइमर तभी प्रोड्यूस होगा जब सिर्फ और सिर्फ फिब्रिन जो है वो हमारा इट्स गेटिंग लाइज्ड. ओके, सो इन केस ऑफ DIC what will happen is D dimer would be ज़्यादा, whereas in case of fibrinolysis उसमें हमारा जो है D dimer प्रोड्यूस नहीं होता है, इट्स नॉर्मल. वो मतलब प्रोड्यूस का मतलब है ये बढ़ता नहीं है, ये इट रिमेन्स नॉर्मल. आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट. सो ओवर हेयर क्लिनिकल टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो DIC क्या पढ़ रहे थे हम, डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जस्ट अ मिनट, क्लॉटिंग ज़्यादा होएगी, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होएगी, प्लेटलेट्स कम होंगे, कोएगुलेशन फैक्टर्स कम होंगे. कोएगुलेशन फैक्टर जैसे कि फिब्रिनोजन भी कम होगा क्योंकि क्लॉटिंग एबनॉर्मल होती है, तो मतलब माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन होती है, तो MAHA का डर रहता है, सिस्टोसाइट हम देखने को हमें मिल सकता है. उसके अलावा क्योंकि DIC में फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, हमें पता लग गया ये क्या होता है और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, और स्पेसिफिकली डी डाइमर प्रोड्यूस होता है. तो डी डाइमर टेस्ट में हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा. एंड डी डाइमर इज़ अ वेरी क्लासिक स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर DIC. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. Okay, and very important thing, another thing to remember is that this D dimer is not produced when fibrinogen is splitted or it's lysed. Instead it's produced only when fibrin has been cleaved. Okay, so इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है कि जिस वजह से DIC हुआ है, मतलब you need to take a, this is why it's very important to take the history of a patient. For example, you are noticing like you just have a patient in your clinic and he was admitted in the emergency department and on the vitals वगैरह चलो जो भी थे, पर हम सीधा टेस्ट की बात करते हैं क्योंकि वाइटल्स तो जैसे BP वगैरह बढ़ा है या फिर क्योंकि ऑफकोर्स ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा ब्लड प्रेशर? क्योंकि वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन है,
ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, तो किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तो बीपी आपको रेज्ड मिलेगा। ठीक है, ये तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो और भी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो तो बाद में देखेंगे। बट द मेन थिंग इज, सपोज करो कि तुम्हारे पास उसकी लैब रिपोर्ट आती है और उसका पीटी और पीटीटी बढ़ा हुआ है, तुम्हें पता लग गया कि भाई मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है, ठीक है, प्लेटलेट्स कम दिखते हैं, मतलब पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ठीक है, उसको एबनॉर्मली ब्लीडिंग हो रही है, तुम्हें MAHA मतलब ये जो भी हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स अभी पढ़ी ना, वो सब देखने को मिल जाती है। अब तुमने उससे पेशेंट से पूछा, फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट इज़ अ मेल, मिडल एज्ड मेल, लाइक अराउंड 42 ईयर्स या अराउंड 48 ईयर्स लगा लो, ठीक है। तो अब तुम उससे उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तुम्हें या फिर जो भी तुम्हारे पास टेस्ट आता है, इवन तुम्हें टेस्ट से पता लग जाता है कि उसको एडिनोकार्सिनोमा है, तो तुम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि हाँ भाई मे बी इट्स DIC विच इज़ ट्रिगर्ड बाय द म्यूसिन सिक्रीशन ड्यू टू एडिनोकार्सिनोमा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास पेशेंट आता है जिसको रेटल स्नेक बाइट, मतलब जो भी है सांप ने काट लिया, और उसको ये सारी चीज़ें देखने, जो हमने अभी लैब फाइंडिंग्स पढ़ी, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो यू कैन रिलेट कि विनोम जो उसका जहर है स्नेक का, उसकी वजह से शायद एकदम से DIC जो है ट्रिगर हो गया। सो यू हैव टू relate these things. That's why history taking is so important. Second thing which I want to tell about the treatment, क्योंकि DIC ज़्यादातर इन 98% ऑफ केसेस, 98 के 100% कह लो, हमेशा ही ऐसा होता है कि जो DIC है वो मतलब खुद से नहीं होता, खुद से अपने आप ही क्लॉट्स नहीं बनने लग जाएंगे, किसी ट्रिगर की वजह से होता है। तो अगर लाइक वो हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि तुम इन कंडीशंस को ठीक करो, जो भी पेशेंट को है। फॉर एग्जांपल किसी को सेप्सिस है, उसकी वजह से DIC हुआ है, तो यू शुड फर्स्टली ट्रीट सेप्सिस बाय गिविंग एंटीबायोटिक्स। अगर ये परेशानी ठीक हो जाएगी तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स अपने आप ही कम होंगे, तो इम्यून ट्रिगर नहीं होगा, इम्यून सिस्टम ट्रिगर नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो TT कहाँ से रिलीज़ होगा, कहीं से भी नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? So for specifically if we talk about the treatment for disseminated intravascular coagulation, it's really important to first treat the underlying conditions, underlying cause of the DIC. सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, हम उसको क्रायो प्रेसिपिटेट दे सकते हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट जो होता है ना, हमारे पास क्रायो PPT में लिख रही हूँ, इट्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। क्रायो प्रेसिपिटेट जो होता है ना, इसके अंदर ऑलरेडी कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, तो अगर हम उसको एक कोएगुलेशन फैक्टर्स का वो चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उससे बॉडी में कोएगुलेशन फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, PTT जो बढ़ रखा था वो कम हो जाएगा, ब्लीडिंग कंट्रोल में आने लग जाएगी, और ग्रेजुअली प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। सो बेसिकली क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ाया जाता है, इसके अलावा फ्रेश ब्लड चढ़ाया जाता है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा स्पेसिफिक टू से, मतलब खून चढ़ाया जाता है बंदे को, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट लाइक खून चढ़ाना, क्या कहेंगे उसको, ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड प्रोडक्ट्स। ओके, सो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। खून की दिक्कत है, खून चढ़ा दो, क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ा दो जिसमें ऑलरेडी कोएगुलेशन फैक्टर्स है, तो उसकी वजह से भी क्या कहते हैं, जो भी कमी रह रही है वो ठीक हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू टेल, और इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है फिब्रिनोलाइसिस, जो कि मैंने बहुत हद तक आपको मतलब ऐसे ही समझा दिया। एक बार मैं देखना चाह रही थी यहाँ पे कुछ नया पॉइंट तो नहीं है कि फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट से ज़्यादा। ओके, सो दिस वाज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। इसके अलावा भी मेरे पास इसके नोट्स हैं, इफ़ यू या want to get the notes you can DM. Okay, so now let's talk about another concept which is disorders of fibrinolysis. Now what is normal fibrinolysis? मैंने अभी बताया fibrinolysis क्या होता है कि
जो ये हमारे पास क्लॉट बने हैं ना, ये क्या है, ये है फिब्रिन क्लॉट्स. सो फिब्रिनोलाइसिस इज टू रिमूव दीज क्लॉट्स. ठीक है. क्यों क्यों रिमूव करना ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर ये देखो हमारी बॉडी में क्लॉट्स बनते हैं और वो क्लॉट्स को रिमूव इसलिए किया जाता है कि ये क्लॉट्स अगर जमे रहेंगे तो विद टाइम ये बढ़ सकते हैं और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आएगी ब्लड वेसल में, तो हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है, विच लीड्स टू इस्कीमिया एंड इन्फेक्शन progressively. Okay, so our main focus would be to heal the damaged vessel, not to form not just to form the clots. Okay, because it will lead to thrombosis. Okay, we have studied about it. तो ये फिब्रिन क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आता है प्लाज्मिन. ठीक है. सो प्लाज्मिन, एज आई टोल्ड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्लीव फिब्रिन एज वेल एज सीरम फिब्रिनोजन. और जो प्लाज्मिन होता है, अब फिब्रिन क्या हुआ, ये हुआ कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, मतलब क्लॉट्स बनाता है. तो ये प्लाज्मिन एक एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है क्योंकि ये ब्लॉक करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को. इट ब्लॉक्स प्लेटलेट एग्रीगेशन. ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द क्लॉट ब्रेकर है ये. ठीक है. अब अगर प्लाज्मिन बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? कि बहुत ज़्यादा लाइक जो ये है ब्लॉकेज रहेगी कोएगुलेशन फैक्टर्स की. अगर प्लाज्मिन बहुत ज़्यादा ही हो गया, ओवरली एक्टिव हो गया, तो उससे तो परेशानियाँ हो जाएंगी. तो हर चीज़ का एक स्टॉप जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, स्पीड ब्रेकर है हमारी बॉडी में. अगर फिब्रिन क्लॉट्स हम कहेंगे भाई क्लॉट्स ज़्यादा बन रहे, दिक्कत हो जाएगी, तो उसको ब्लॉक करने के लिए प्लाज्मिन है, प्लाज्मिन इसको तोड़ देगा. अगर प्लाज्मिन ज़्यादा हो जाए तो इसको कौन तोड़ेगा? इसको तोड़ता है अल्फा-2 एंटी प्लाज्मिन. इसके नाम में ही वी कैन फाइंड द आंसर. सो बेसिकली अगर फिब्रिन की बात करें तो फिब्रिन को कौन तोड़ता है? प्लाज्मिन. और प्लाज्मिन को कौन तोड़ता है? एंटी प्लाज्मिन, अल्फा-2 एंटी प्लाज्मिन. और ये अल्फा-2 एंटी प्लाज्मिन जो भाई साहब है, ये कहाँ से आते हैं? ये लीवर से आते हैं हमारे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना क्योंकि इसके ये आगे हमें क्लिनिकली कोरिलेट करने में हेल्प करेगा. सिंपल सी बात है भाई, अगर लीवर में किसी की परेशानी है, कायरोसिस हो गया किसी के, है ना, या दिक्कत है जो भी लीवर में परेशानी है, तो ये इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी. तो अगर कभी ये वाली परेशानी रहती है, क्लॉट फॉर्मेशन, ये जो भी है, तो ये प्लाज्मिन ओवरली प्रोड्यूस होएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं होएगा. ओके. सो जैसा कि मैंने बताया कि फिब्रिनोलाइसिस के डिसऑर्डर्स का क्या मतलब है, इसके डिसऑर्डर्स का ये मतलब है कि ये जो फिब्रिनोलाइसिस है ये ज़्यादा हो रही है. फिब्रिनोलाइसिस के डिसऑर्डर्स का क्या मतलब है? फिब्रिनोलाइसिस मतलब फिब्रिन को जब प्लाज्मिन तोड़ रहा था, ये एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है. और ये एक्टिविटी ज़्यादा कब होगी? जब ये जो मॉलिक्यूल है जो इस चीज़ को तोड़ रहा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. सो डिसऑर्डर्स ऑफ फिब्रिनोलाइसिस आर ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मिन. ठीक है. और अगर प्लाज्मिन की ओवर एक्टिविटी मतलब प्लाज्मिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या करेगा? इट विल क्लीव द सीरम फिब्रिनोजन अलॉट. ठीक है. और एक और चीज़ मैंने इंपॉर्टेंटली पहले ही बता दी है कि DIC में ज़्यादातर ऐसा होता है. मेजरली देखो, फिब्रिनोलाइसिस इज जनरल टर्म जो कि कहा जाता है कि प्लाज्मिन जो है ना, प्लाज्मिन एक हम जनरली कहते हैं कि फिब्रिनोजन सबको तोड़ता है. ठीक है. पर जब हम DIC की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिकली कौन टूटता है? फिब्रिन. और इसमें कौन टूटता है? फिब्रिनोजन. जिसकी वजह से इसमें D डाइमर आता है और इसमें D डाइमर नहीं आता. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है. ओके. सो नाउ अगर मैं डिसऑर्डर्स की बात करूँ फिब्रिनोलाइसिस के, तो वो क्यों हो रहे हैं? अगर प्लाज्मिन सो हम थे कि अगर फिब्रिनोलाइसिस के डिसऑर्डर्स की बात करें तो वो कब होएगा? अगर प्लाज्मिन की ओवर प्रोडक्शन होएगी या फिर ओवर एक्टिविटी होएगी. और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. सबसे पहला तो है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी. ओके.
इसमें क्या होता है ना, जब भी प्रोस्टेट सर्जरी होती है, जब भी प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, सो उस सर्जरी के दौरान एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है और वो एंजाइम का नाम है यूरोकाइनेज। और ये जो यूरोकाइनेज है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एक्टिवेट प्लाज्मिन। सो कई बार प्रोस्टेट सर्जरी के दौरान ये यूरोकाइनेज ओवरली प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मिन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर प्लाज्मिन की एक्टिविटी ज़्यादा होएगी तो फिब्रिनोलाइसिस, क्या कहते हैं उसको, लाइक ओवर एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से परेशानी रह सकती है आगे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कायरोसिस ऑफ लिवर, एज आई टोल्ड, कि अगर देखो या तो प्लाज्मिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या फिर प्लाज्मिन को तोड़ने वाला प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो अगर लीवर में परेशानी रहती है, कायरोसिस ऑफ लिवर फॉर एग्जांपल, बिकॉज लीवर नॉर्मली इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द एंजाइम कॉल्ड अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन। सो इफ liver has some issues, then there would be reduced production of this enzyme, and there would be gradually the overactivity of plasmin, and because plasmin ज़्यादा रहेगा तो वही सीरम फिब्रिनोजन लाइसिस भी ज़्यादा होएगी। और अगर ब्लीडिंग मतलब क्लॉट ज़्यादा से ज़्यादा टूटेंगे, क्लॉटिंग कम होएगी, ब्लीडिंग ज़्यादा होएगी, तो मतलब यहाँ पे ब्लीडिंग रिस्क रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो फिब्रिनोलाइसिस है, मैंने बताया कि फिब्रिनोलाइसिस समवेयर रिजेंबल्स DIC, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, क्योंकि फिब्रिनोलाइसिस में भी क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, कोएगुलेशन फैक्टर्स कम हो जाते हैं। फैक्टर्स क्यों कम होंगे? क्योंकि भाई प्लाज्मिन जो होता है वो प्लाज्मिन की ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है ये डिसऑर्डर। और प्लाज्मिन क्या करता है, वो फिब्रिन या फिब्रिनोजन जो भी है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको ब्लॉक करता है। प्लाज्मिन इज रिस्पॉन्सिबल टू inhibit the platelet aggregation. So basically coagulation factors would decrease and bleeding or bleeding time would increase. coagulation factors decrease होंगे तो PT और PTT क्या होगा, क्या होगा भाई, अभी बताया था, बढ़ेगा। So basically plasmin destroys the coagulation factors due to which this test PTT would increase and bleeding time बढ़ जाता है। बस एक ये फ़र्क रहता है कि DIC में हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, यानी कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, पर फिब्रिनोलाइसिस में प्लेटलेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मिन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्लॉक द प्लेटलेट एग्रीगेशन, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं कर पाते, क्लॉट नहीं बन पाता। पर वैसे नॉर्मली प्लाज्मिन कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, पर DIC में प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, इसलिए वो काफ़ी सीरियस कंडीशन है। क्योंकि प्लेटलेट्स का कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे थे, दे वर गेटिंग यूज्ड अप इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई, तभी तो MAHA हो रहा था DIC में, पर फिब्रिनोलाइसिस में ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी। और एक लास्ट जो हमारे पास फ़र्क है फिब्रिनोलाइसिस और DIC में, वो ये है कि फिब्रिनोलाइसिस जो होते हैं, फिब्रिनोजन स्प्लिट प्रोडक्ट्स इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इसमें D डाइमर नहीं बनता, इसमें D डाइमर बनता है, ठीक है। याद हो गया, एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। D डाइमर बनेगा, D डाइमर नहीं बनेगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा, ब्लीडिंग होएगी, इसमें भी होएगी ब्लीडिंग, लेकिन इसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है, इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। इसमें PTT बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, कोएगुलेशन फैक्टर्स इसमें कम होंगे, इसमें भी कम होंगे। और क्या कहते हैं, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। DIC का ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, या फिर जो अंडरलाइन कॉजेज़ है जिसकी वजह से ये हुआ है, सेकेंडरी कॉजेज़, उनको ट्रीट करो, या फिर क्रायोप्रेसिपिटेट चढ़ा दो, बंदे को खून चढ़ा दो। और इसमें हम क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइनो कैप्रोइक एसिड दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन क्या होता है, अब जैसे फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, वैसे प्लाज्मिनोजन से बनता है। तो अगर हम प्लाज्मिनोजन को ही ब्लॉक कर देंगे तो प्लाज्मिन बनेगा नहीं बनेगा, तो इसकी एक्टिविटी ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगी। सो अमाइनो कैप्रोइक एसिड इज यूज्ड एज इट इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स फॉर द fibrinolysis. Okay, now let's move to the another section of discussion, which is thrombosis. ओके, थ्रोम्बोसिस का मैंने ऑलरेडी बता दिया। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन। और इस थ्रोम्बोसिस जो हमारे पास थ्रोम्बस होता है ना, उसकी एक बहुत ही क्लासिकल करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इट इज़ ऑलवेज अटैच्ड विद ब्लड वेसल वॉल।
ये मैंने आपको भी बताया पीछे वीडियो में कि इट इज़ अटैच्ड विद ब्लड वेसल वॉल, और अगर ये अटैच्ड नहीं होएगी, अगर ये फ्लोट कर रही होएगी, कर रहा होगा ये क्लॉट, तो इसका क्या मतलब है कि वो एम्बोलाई है, दिस एम्बोलाई. Second important thing I want to tell you over here is कि लाइन्स ऑफ जैन, या जान भी कहते हैं इसको, लाइन्स ऑफ जान. ये क्या होती है ना, दे आर लाइक, जैसे अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें उसको, मतलब पैथोलॉजिकली स्लाइड देखेंगे, तो कुछ ना ऐसे मतलब ऑल्टरिंग, एक तरफ डार्क, एक तरफ लाइट, एक तरफ फिर डार्क, एक तरफ लाइट, ऐसे ना बैंड्स दिखेंगे. एक तरफ होएगा आरबीसी और एक तरफ होएंगे प्लेटलेट्स प्लस फिब्रिन. ये मैंने थोड़ा सा ओके. और एक तरफ होएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल दिस रेड वन इज आरबीसीज एंड दिस ब्लू वन इज प्लेटलेट्स प्लस फिब्रिन. सो ऐसे ना ऑल्टरनेटिव से ना बैंड्स होते हैं, और वो बैंड्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड लाइन ऑफ जैन, और वो सिर्फ क्लॉट्स में दिखती हैं, सॉरी थ्रोम्बस में दिखती हैं. थ्रोम्बस बेसिकली जो अटैच्ड रहेगा ब्लड वेसल से. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास ये वाले थ्रोम्बस हैं, अगर थ्रोम्बस ये ट्रीट नहीं करा जाता, ठीक है, तो इसकी वजह से ओवर द टाइम क्या होता है, मैंने बताया ब्लड सप्लाई कम होएगी, ऑक्सीजन की कमी, वेसल, ये जो भी ऑर्गन को सप्लाई कर रही होएगी ये ब्लड वेसल, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी. धीरे धीरे एस्कीमिया, हाइपोक्सिया, एस्कीमिया एंड देन इन्फाक्शन, देयर इज डेथ ऑफ द टिश्यू एंड देन द ऑर्गन रिस्पेक्टिवली. व्हाट हैपन्स, थ्रोम्बस की वजह से डेथ होगी, ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि बंदे के मरने के बाद उसके खून जमना शुरू होता है, उसके खून के अंदर ऐसे क्लॉट्स बनने शुरू होते हैं. तो उस वाले थ्रोम्बस से और इस वाले थ्रोम्बस से फ़र्क क्या है कि वो जो थ्रोम्बस होगा वो कभी भी ब्लड वेसल की वॉल में अटैच्ड नहीं होता है. दूसरा, जब तुम उस थ्रोम्बस को, मतलब उस खून की गांठ को बाहर निकाल के तुम उसकी स्टडी करोगे, तो तुम्हें कभी भी लाइन्स ऑफ जैन नहीं दिखेंगी. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली पॉइंट, ठीक है, क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेसिफिक टू से कि हमारे पास थ्रोम्बस क्या है, इट इज़ पैथोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंट्रावैस्कुलर ब्लड क्लॉट, एंड ये किसी भी आर्टरी और वेन में हो सकता है. और स्पेसिफिकली कहा जाता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये हमने एम्ब्रियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि कैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, मतलब हमारे स्पेसिफिकली वेरिकोज वेन की वजह से, है ना, ये हमने पढ़ रखा है कि जो लेग्स बिलो द नी, फॉर दिस इज़ नी के नीचे पीछे बैक साइड पे, है ना, काफ मसल में हम देखते हैं, दैट मसल इज कॉल्ड गैस्ट्रोक्नेमियस मसल. ओके, सो उस मसल के पास हम देखते हैं वहाँ पे वेरिकोज वेन जो होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं. और इसके अलावा लाइक दैट्स पर्टिकुलरली हमारा मतलब पैर की जो नसें होती है ना उसमें दिखने को ज़्यादातर दिखता है, पर वैसे कहीं किसी भी आर्टरी और वेन में ब्लॉकेज हो सकती है. और बट द मोस्ट common cause for thrombosis is deep vein thrombosis. Like the most common location I want to say is the deep veins. Deep veins matlab in the lower extremities. Okay, and it is characterized by this and this. And these two features differentiate this thrombus from the postmortem clot. Okay. ओके. और जब भी हम थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, और वो हमने एनाटमी में पढ़ रखा है, विच इज़ क्लिनिकल एनाटमी में हम पढ़ते हैं वर्चाउस ट्रायड. और मैं इसको याद रखती हूँ एक ट्रिक से, जिसे कहती हूँ मैं SHE, शी. S स्टैंड फॉर स्टेसिस, H स्टैंड्स फॉर हाइपरकोएगुबिलिटी एंड E स्टैंड्स फॉर endothelial cell damage. ओके, सो वर्चाउस ट्रायड में क्या होता है कि देखो नॉर्मली हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना, हम कहते हैं कि वो ब्लड फ्लो होता है लैमिनर, ठीक है, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है. पर जब भी ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो जाए, ठीक है, और स्टेगनेंट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बोसिस. कभी भी हाइपर
कोएग्युलेबल स्टेट आ जाए, ज़्यादा क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है। एंडोथेलियल सेल वॉल डैमेज है बिकॉज एंडोथेलियल सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट नाइट्रिक ऑक्साइड PgI2. It is responsible to secrete heparin-like substances like heparin sulfate, and these all are natural vasodilators present in the endothelial cells, which helps to dilate the blood vessel and inhibit the platelet aggregation and inhibit the coagulation, or to maintain the flow of the blood. ओके अगर इस वॉल पे डैमेज रहेगा तो ये प्रोड्यूस नहीं होंगे, और ये जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट है ये ब्लॉक्ड रहेंगे। सो बेसिकली ये तीन चीज़ों में जब भी डिसरप्शन आता है तो जब भी किसी वजह से डिसरप्शन की वजह से ये तीन चीज़ें हो जाएं तो थ्रोम्बोसिस का रिस्क रहता है। सबसे पहली चीज़ क्या थी, मैंने बताया स्टैसिस। स्टैसिस का क्या मतलब है, स्टेगनेंट ब्लड, या फिर हम कहें टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। जब भी ब्लड फ्लो में टर्बुलेंस होएगी तो उसकी वजह से क्या होती है, थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा ब्लड फ्लो होता है ना, इट्स लैमिनर एंड इट्स कंटिन्यूअस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम नॉर्मल हमारा ब्लड फ्लो जा रहा है तो सारी चीज़ें नॉर्मली रहती हैं, पर अगर लाइक इफ़ देयर इज सम कहीं पे ब्लॉक, स्टैग्नेंट मतलब रुक गया, क्लॉट बन गया, ठीक है, तो क्या होगा, इसको ही तो थ्रोम्बस कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि ब्लड फ्लो हमारा एबनॉर्मल क्यों होता है, स्टैग्नेंट क्यों हो जाता है, अगर तुम बहुत टाइम से बेड रेस्ट पे हो, कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को पैरालिसिस का अटैक आया वो बंदा पिछले फॉर एग्जांपल 2 साल से बेड पे है ना, उसकी बॉडी ने मूव नहीं किया है, उसके पैर ऐसे ही जमे हैं एक ही जगह पे, बेड रेस्ट पे, कंप्लीट बेड रेस्ट पे 2 साल से, तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो और उससे आगे जाके इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इमोबिलाइजेशन बेसिकली, ठीक है। क्योंकि अगर तुम काफ़ी टाइम से बेड रेस्ट पे हो, मतलब या फिर तुम वैसे भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, है ना, बेड पे पड़े रहते हो, तो इमोबिलाइजेशन की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। एंड मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे कहा जाता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर थ्रोम्बस फॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि ये जो क्लॉट होता है ये डिसलॉज होके लंग्स में हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू घुस जाता है, और वहाँ पे जाके दिस प्रोसेस इज एम्बोलिज्म, एंड बिकॉज इट अफेक्ट्स द एरिया विच ऑर्गन, लंग्स, सो इट्स कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके अलावा किसी भी तरह का मतलब स्टैसिस मतलब खून रुक गया, वहाँ पे गांठ बन गई, इट कुड बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, फॉर एग्जांपल एन्यूरिज्म और कार्डियक वॉल डिसफंक्शन, जैसे हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसमें भी तो ऐसा होता है, खून की गांठ बन जाती है ना, या फिर क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की गांठ बन जाती है, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड। सेकेंड इज एंडोथेलियल सेल डैमेज। एंडोथेलियल सेल डैमेज कब होता है, किसी भी वजह से हो सकता है। दूसरा क्या कहते हैं, ओके, एंडोथेलियल सेल डैमेज की वजह से क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और एंडोथेलियल सेल जो है थ्रोम्बोसिस को कैसे रोकता है, मैंने बताया ये PgI2 सिक्रीट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 विच इज़ अ वैसोडायलेटर, इट ऑल्सो सिक्रीट्स नाइट्रिक ऑक्साइड, मैंने बता दिया है, वैसोडायलेशन में हेल्प करते हैं। इट सिक्रीट्स हेपरिन लाइक सब्सटेंसेस, ये हमें सबको पता है। स्पेसिफिकली हेपरिन सल्फेट को सिक्रीट करता है। ये हेपरिन सल्फेट क्या करता है, ये एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करता है, और ये जब बाइंड कर जाता है इसके साथ तो ये क्या करेगा, नाम ही है एंटी थ्रोम्बिन 3, ये जो थ्रोम्बिन है उसको ब्लॉक करता है। जब वो ब्लॉक होगा तो कोagulation फैक्टर्स ब्लॉक होते हैं। तीसरा हमने बहुत ही बिगिनिंग में पढ़ रखा था कि
ये अगर एंडोथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पे हमारे इंजरी हुई है, तो जो प्राइमरी हीमोस्टैसिस शुरू होती है वो शुरू होती है जब प्लेटलेट्स बाइंड करता है. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रॉम वेयर दिस होल प्रोसेस स्टार्टेड वॉज प्लेटलेट अधेशन. और वो प्लेटलेट कैसे चिपकता है? वाया दिस फैक्टर. एंड ये किससे चिपकता था? सब एंडोथेलियल कोलेजन विच वॉज एक्सपोज्ड वाया this vessel wall. So endothelial cells they prevent thrombosis. They prevent thrombosis by basically blocking the exposure of this subendothelial collagen. This is the concept. Okay, so okay, इसके अलावा हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम क्या पढ़ रहे थे कि कैसे एंडोथेलियल सेल रोकता है क्लॉट फॉर्मेशन में. ठीक है, तो ये हमारा पहला चीज़ था ना जो क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था. ये प्लेटलेट अधीज करेंगे, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी हीमोस्टैसिस. प्लेटलेट तभी बनेगा जब ये बाहर आएगा, तो अगर यही नहीं आएगा तो फिर कैसे प्लेटलेट बनेगा? तो वो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर होता है. इफ़ इट ब्लॉक्स द एक्सपोजर ऑफ दिस थिंग then there would be no clot formation. Second thing कि जो ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रेट TPA. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट है. TPA की फुल फॉर्म है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. ठीक है, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कब कन्वर्ट होगा? जब ये TPA आएगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा. और प्लाज्मिन क्या करता है? क्लॉट्स को तोड़ता है. क्लॉट्स को तोड़ता है तो हमें क्या कराना है? हमें क्लॉटिंग कम करानी है. क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि थ्रोम्बोसिस को कैसे रोकता है एंडोथेलियल सेल्स. थ्रोम्बोसिस मतलब थ्रोम्बस फॉर्मेशन विच इज़ क्लॉट फॉर्मेशन. तो वो कैसे रुकेगा? वैसोडायलेटर्स की हेल्प से. वैसोडायलेटर्स की हेल्प से. ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन को, हाँ, वैसोडायलेटर्स, डायरेक्टली वैसोडायलेटर्स प्रोड्यूस करो, या फिर ऐसे वैसोडायलेटर्स प्रोड्यूस करो जो एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ कंबाइन करके आगे थ्रोम्बिन को ब्लॉक करते हैं, कोआगुलेशन को ब्लॉक करते हैं, या फिर सब एक्सपोज्ड कोलेजन का एक्सपोजर ब्लॉक करके, या फिर प्लाज्मिन को एक्टिवेट करके, जो कि इस फैक्टर को ज़्यादा सिक्रेट करोगे तो हो जाएगा. इसकी ओवर एक्टिविटी क्या करेगी? इट विल ब्लॉक द प्लेटलेट एग्रीगेशन. जस्ट हमने पढ़ के हटे हैं. पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल क्या था उसका नाम? थ्रोम्बोमोड्यूलिन. ओके, सो इट इज़ लाइक रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रेट दिस थिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि जो ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन है, इट रीडायरेक्ट्स थ्रोम्बिन. मतलब बेसिकली इसकी वजह से थ्रोम्बिन जो है वो आगे जाके प्रोटीन C को एक्टिवेट करता है. और आपको पता है प्रोटीन C क्या है? इसका एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होता है. इट इज़ अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लड. ठीक है, एंड इट इज़ विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर. जब विटामिन K ज़्यादा होता है तो ये चीज़ प्रोड्यूस होती है. ठीक है, पर अभी वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं. हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर थ्रोम्बोमोड्यूलिन सिक्रीट होगा, वो कौन सिक्रीट करता है? एंडोथेलियल सेल्स. तो थ्रोम्बिन जो है वो हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. थ्रोम्बिन जो होता है वो एक्टिवेट करता है प्रोटीन C को, और प्रोटीन C आगे जाके फैक्टर 5 और फैक्टर 7 को ब्लॉक करते हैं. फैक्टर 8 को, सही लिखा था मैंने. फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को ब्लॉक करते हैं. दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट. एंड इसका एक मेरे पास
जस्ट अ मिनट. चलो, we were studying that. Okay. This thing. This was something which I was talking about कि जो हमारे पास थ्रोम्बस है, अगर हम जो थ्रोम्बस होता है उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसका कुछ इस तरीके से ये आता है. ये हमें डार्क बैंड्स में दिख रहे हैं, ये दे आर आरबीसीज. एंड ये जो लाइट बैंड्स दिख रहे हैं, ये लाइट बैंड्स जो अल्टरनेटिव, ये है हमारे प्लेटलेट्स प्लस फिब्रिन. ठीक है. उसके बाद ये जो कुछ चीज़ें थी ये हमने पढ़ ली हैं कि कैसे एंडोथेलियल सेल जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन. We can revise it. First factor, PGI2 NO secretion. Second, heparin like substances like heparin sulfate, which basically binds with antithrombin 3, and antithrombin 3 further gets activated and it is responsible to block the thrombin and progressively blocking the thrombin, of course the coagulation cascade. Then it is responsible to block the exposure of subendothelial collagen so as to prevent the platelet aggregation. Then it secretes TPA, which is tissue plasminogen activator, which basically activates the plasminogen into plasmin, and plasmin is further responsible to block the or lyse the fibrin and fibrinogen, serum fibrinogen, and it is also responsible to prevent platelet aggregation. इसके अलावा the last fifth point, that endothelial cell is responsible, they are responsible to secrete thrombomodulin, which is a very important key factor, and it redirects the thrombin and enables thrombin to activate protein C, which further inactivates factor 5 and factor 8. अगर एंडोथेलियल हमने ये पढ़ लिया कि एंडोथेलियल सेल वॉल जो है हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस. तो अगर इसको डैमेज होगा तो बेसिकली थ्रोम्बोसिस जो है होके रहेगा. तो किस वजह से डैमेज हो सकती है सेल वॉल? वैस्कुलाइटिस की वजह से. इफ़ देर इज़ इन्फ्लामेशन इन द वेसल तो उसकी वेसल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, उसमें वो डैमेज हो जाएंगे. पहला रीज़न. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? एथरोस्क्लेरोसिस. ठीक है. एथरोस्क्लेरोसिस विच इज़ डिपोजिशन ऑफ plaque, specifically a cholesterol in the blood vessels, causing obstruction in the major arteries or veins, and it can further lead to even myocardial infarction. Next and the last one is homocysteine अगर ज़्यादा हो, high levels of homocysteine, and this is a very high yield concept, very high yield concept. Okay, होमोसिस्टीन जो होता है ना, इसको मीथियोनिन में हमें कन्वर्ट करना होता है. इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल. ठीक है. और अगर ये कन्वर्जन ना हो तो क्या होता है कि होमोसिस्टीन, अगर देखो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, और अगर होमोसिस्टीन कन्वर्ट नहीं होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा. किसी भी वजह से होमोसिस्टीन अगर ज़्यादा हो रहा है देन इट विल लीड टू थ्रोम्बोसिस. ठीक है. होमोसिस्टीन मीथियोनिन में कैसे कन्वर्ट होता है? देयर इज़ अ होल फुल फ्लेज प्रोसेस. क्या होता है कि जो हमारे पास फॉलिक एसिड होता है ना, फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डीएनए सिंथेसिस में. ओके. हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉलिक एसिड का, या फॉलेट जिसे हम कहते हैं, फिर टेट्रा हाइड्रोफोलेट THF भी कहते हैं फॉलिक एसिड को.
ठीक है, तो इट्स one of the major things which participate in the synthesis of DNA synthesis as a DNA precursor. So इसीलिए जो ये हमारा फॉलिक एसिड है ये बॉडी में सीरम में कैसे सर्कुलेट होता है, इसके आगे मिथाइल लग जाता है, ठीक है। एंड बिकॉज इट हैज़ टू पार्टिसिपेट इन दैट प्रोसेस, ये जो अपना मिथाइल होता है ना, इस मिथाइल को डोनेट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, पता है किस पे, विटामिन B12 में, इसके साथ मिथाइल लग जाता है। और हमारा जो ये विटामिन B12 है, व्हेन मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द फॉलिक एसिड इज ट्रांसफर्ड टू विटामिन B12, देन this allows this THF to participate in the DNA synthesis process. Now vitamin B12 क्या करता है, vitamin B12 is also known as cobalamin. It further transfers its methyl group to homocysteine. अब इसने भी मिथाइल ग्रुप रख के क्या करना है, तो ये चीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है होमोसिस्टीन में, और जब होमोसिस्टीन के साथ मिथाइल ग्रुप लग जाता है ना, तो हम इसी चीज़ को क्या कहते हैं, मिथायोनिन. दिस इज़ द होल प्रोसेस. आई होप यू गेट इट. रिवाइज कराऊंगी. टेट्राहाइड्रोफोलेट जिसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड या फॉलेट, इसका काम होता है डीएनए सिंथेसिस में. इसके साथ लग जाता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है. ये अपने साथ मिथाइल ग्रुप लगा लेता है so as to circulate in the blood. Because it has to participate in the DNA synthesis, so it transfers its methyl group to, इसको स्टोरी की तरह समझो, it transfers its methyl group to विटामिन B12. और जो विटामिन B12 है वो अपना मिथाइल ग्रुप किसको ट्रांसफ़र करता है, होमोसिस्टीन को. और होमोसिस्टीन किसको करता है, किसी को भी नहीं करता. अगर होमोसिस्टीन के साथ मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसको हम कहते हैं मिथायोनिन, और वही हमें बनाना था. तो किसी भी वजह से स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी इस प्रोसेस की, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से. किसी भी वजह से अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी किसी बंदे को, तो क्या होगा, फॉलेट नहीं होगा, ये स्टेप नहीं होगा, या फिर विटामिन B12 नहीं होगा तो ये स्टेप नहीं होगा. तो किसी भी तरह से इनकी डेफिशिएंसी की वजह से होमोसिस्टीन बिल्डअप हो जाता है, होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एंडोथीलियल वॉल डैमेज हो जाएगी. नाउ द वेरी सेकेंड प्रोसेस ओवर हेयर इज CBS deficiency. Now what is CBS? Now let's complete this topic. It's उतना बड़ा नहीं है जितना इसको बड़ा खींच दिया है. वेरी सिंपल कंसेप्ट है कि जो CBS है हमारे पास, CBS कन्वर्ट करता है. CBS की पहले तो फुल फॉर्म क्या है, इट इज़ सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज. ये एक एंजाइम है, ये हमारा होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करता है सिस्टाथायोनिन में, ठीक है. तो जैसे मिथायोनिन का तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, ये तो एक ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है. तो ये भी नॉर्मली बॉडी में होता है. अगर होमोसिस्टीन नहीं कन्वर्ट होता सिस्टाथायोनिन में तो होमोसिस्टीन ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से वेसल थ्रोम्बोसिस हो सकता है. इसके कुछ और फीचर्स भी होते हैं, और वो ये होते हैं कि देयर वुड बी मेंटल रिटार्डेशन इन द चाइल्ड, ऑल्सो लेंस डिसलोकेशन, थ्रोम्बोसिस तो होगा ही होगा, लेकिन वी कैन से मार्फेनियन हैबिचुअल, लाइक यू नो, लॉन्ग स्लेंडर फिंगर, बहुत बड़ी बड़ी उंगलियां होती हैं उस बंदे की, जैसे मार्फन सिंड्रोम में होती हैं. पर मार्फन सिंड्रोम डिफरेंट है क्योंकि वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये कुछ और चीज़ होती है. यहाँ पे CBS डेफिशिएंसी की, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से सिस्टाथायोनिन नहीं बनेगा और होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगा. मतलब ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, पर एक ये भी फीचर जो है इसमें देखने को मिलता है. ओके, सो
यहाँ से यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमारे पास जब भी थ्रोम्बोसिस की बात करेंगे, वी हैव अ वर्चॉस ट्रायड, एनीथिंग विच इज़ कॉजिंग स्टैसिस, स्टेगनेंट ब्लड, और एनीथिंग विच इज़ कॉजिंग, कहाँ गया, या एंडोथेलियल सेल डैमेज और हाइपर coagulable state, then it will lead to thrombosis ultimately, and blood flow disrupt कब होगा, जब immobilization है, कोई अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन है, या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह है तो, ठीक है। एंडोथेलियल सेल डैमेज कब होगा, अगर हमारे पास होमोसिस्टीन ज़्यादा है। होमोसिस्टीन ज़्यादा कब होगा, विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर CBS डेफिशिएंसी में, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा कोई यहाँ पे ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हाइपर कोएगुलेबल स्टेट की। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट क्या है, जब बहुत ज़्यादा कोगुलेशन हो रही है। आई थिंक इट्स लाइक एक्सटेंडिंग, एंड हमारा टॉपिक कितना रहता है, इट्स अ ह्यूज टॉपिक ओवर, दीज आर द नोट्स। फिर एम्बोलिज्म थोड़ा ही है, लेट्स कवर इट इन अनदर शॉर्ट वीडियो, ओके। थैंक यू।